ਉਹ ਦਿਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਾੜਾ ਤੇਰਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਉਹ ਰੈਕੜ ਹੀ ਬਣੇ ਕੰਮ ਹੁਣ ਤੈਂ ਜੋ ਕਰੇ ਨੇ ਮੁੱਕਣੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਂ ਰੈਸਟ ਨ ਪਾਵਾ ਯਾਰਾਂ ਦੀ ਤੂੰ ਗੱਲ ਛੱਡ ਐਂਟੀ ਸਾਡੇ ਫੈਨ सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल रजनी एंड मोहित रिएक्शंस। गाइस मेरा नाम है मोहित और मेरे साथ ज्वाइन करें मेरी मम्मी रजनी। कैसे हैं आप? हाँ जी गाइस मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खुश होंगे और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे होंगे। और मैं भगवान से यही दुआ करता हूँ कि भगवान आपको और आपकी फैमिली को खुशियाँ दे, अच्छी हेल्थ दे और आप जिंदगी में जो भी काम करें उसमें आपको बहुत ज़्यादा तरक्की मिले, बहुत ज़्यादा सक्सेस मिले। सो गाइस आज हम एक सॉन्ग पे रिएक्शन देने वाले हैं जो कि सिद्धू मूसेवाला पाजी का एक सॉन्ग रहने वाला है। सो गाइस बिना देरी किए पहले मैं आपको सॉन्ग का नेम बता देता हूँ। सो गाइस जो सॉन्ग का नेम है वो है 911 फुल सॉन्ग सिद्धू मूसेवाला लेटेस्ट पंजाबी सॉन्ग्स। सो गाइस सॉन्ग का नेम है 911। तो गाइस मैं इस सॉन्ग का जो लिंक होगा वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और गाइस ये जो सॉन्ग है ना आप सिद्धू मूसेवाला पाजी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सिद्धू मूसेवाला उस पर जाके सुन सकते हैं। मैं इनके यूट्यूब चैनल का नेम भी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप सबसे पहले जाके सिद्धू मूसेवाला पाजी का जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर देना और वहां पे जाके आप इनके सारे सॉन्ग सुन सकते हैं। सो गाइस बिना देरी किए पहले ये सॉन्ग सुनते हैं, उसके बाद हम अपना रिएक्शन देंगे कि हमें ये सॉन्ग कैसा लगा। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। थ्री टू वन। सिद्धू मूसेवाला Sidhu Moosewala, game changers in the house, baby. This one below my shoes. ਮੌਤ ਨਾਲੇ ਗੁੜੀ ਐ ਸਕੀਰੀ ਬੱਲੀਏ ਜੀਵਾਂ ਹਰ ਪਲ ਜੋ ਅਖੀਰੀ ਬੱਲੀਏ ਮੌਤ ਨਾਲ ਗੁੜੀ ਐ ਸਕੀਰੀ ਬੱਲੀਏ ਜੀਵਾਂ ਹਰ ਪਲ ਜੋ ਅਖੀਰੀ ਬੱਲੀਏ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਬਾਂ ਫੁੱਲ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਫਕੀਰੀ ਬੱਲੀਏ ਰੋਕਿਆ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਝੋਕਿਆ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਾੜੀ ਕਹੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਕਰੀਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰ ਪੂਰੀ ਬਾਬੇ ਦੀ ਐ ਮੇਰੀ ਜੱਟ ਯੁੱਤੀ ਥੱਲੇ ਰੱਖੇ ਦੁਨੀਆ ਕਰੀਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰ ਪੂਰੀ ਬਾਬੇ ਦੀ ਐ ਮੇਰੀ ਜੱਟ ਜੁੱਤੀ ਥੱਲੇ ਰੱਖੇ ਦੁਨੀਆ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰਨੇ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਪਿੰਡ ਮੇਰਾ ਮੂਸਾ ਕਹਾਂ ਇੱਕ ਠੋਕ ਨਹੀਂ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰਨੇ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਪਿੰਡ ਮੇਰਾ ਮੂਸਾ ਕਹਾਂ ਇੱਕ ਠੋਕ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੋ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਬੁਰਾ ਐ ਕਰਤੇ ਪਰੌੜੀ ਅੱਜ ਉਹੀ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਰੋਕੂ ਕਿਹੜਾ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਅਜੀਬ ਕਰਨੋਂ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਉਹਨੇ ਖੁਣੀਆਂ ਕਰੀਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰ ਪੂਰੀ ਬਾਬੇ ਦੀ ਐ ਮੇਰੀ ਜੱਟ ਯੁੱਤੀ ਥੱਲੇ ਰੱਖੇ ਦੁਨੀਆ ਕਰੀਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰ ਪੂਰੀ ਬਾਬੇ ਦੀ ਐ ਮੇਰੀ ਜੱਟ ਜੁੱਤੀ ਥੱਲੇ ਪੁੱਛ ਤੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਰਾਂ ਕੱਢ ਜੁੱਤੀ ਥੱਲੇ ਰੱਖਾਂ ਵੱਲ ਲਈਦਾ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਜੋ ਚੱਕੇ ਵਾਲੀ ਹੱਥ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਰੋਣ ਪਰ ਮੁੰਡਾ ਪੂਰਾ ਰਾਈਟ ਚਾਰ ਰੱਖਾਂ ਬੋਡੀਗਾਰਡ ਨਾ ਆਪ ਕਰਾਂ ਫਾਈਟ ਮੇਰੀ ਜੁੱਤੀ ਥੱਲੇ ਵੈਰੀ ਸਾਰੇ ਜੁੱਤੀ ਥੱਲੇ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਬਿਨਾ ਦੱਸੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਵੇਖਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸਾਰਾ ਕੌਣ ਬੈਠਾ ਰੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਕੌਣ ਹੱਸੇ ਉਹ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾ ਮਾਰੇ ਕਰਦੇ ਨਾ ਪਹਿਲ ਨੀ ਅਣਖਾਂ ਨਾ ਜਿਉਣਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਨੀ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾ ਮਾਰੇ ਕਰਦੇ ਨਾ ਪਹਿਲ ਨੀ ਅਣਖਾਂ ਨਾ ਜਿਉਣਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਨੀ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਫੁਕਰੇ 911 ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਡੈਲ ਨੀ ਖੁੱਲੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਅੱਜ ਆਉਂਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਚੁਣੀਆਂ ਕਰੀਦੀ ਨੀ ਤੇਰ ਪੂਰੀ ਬਾਬੇ ਦੀ ਐ ਮੇਰੀ ਜੱਟ ਯੁੱਤੀ ਥੱਲੇ ਰੱਖੇ ਦੁਨੀਆ ਕਰੀਦੀ ਨੀ ਤੇਰ ਪੂਰੀ ਬਾਬੇ ਦੀ ਐ ਮੇਰੀ ਜੱਟ ਜੁੱਤੀ ਥੱਲੇ ਰੱਖੇ ਦੁਨੀਆ ਹੋ ਬਾਪੂ ਮੇਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਗੱਲ ਹੀ ਇੱਕ ਨੀ ਉਂਝ ਇਹ ਲੋਕ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਿੱਤ ਨੀ ਬਾਪੂ ਮੇਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਗੱਲ ਹੀ ਇੱਕ ਨੀ ਉਂਝ ਇਹ ਲੋਕ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਿੱਤ ਨੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਏ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਔਖੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਜਿੱਤਣੀ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਸਭ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀਏ ਨਾ ਕਦੇ ਗਲਤ ਵਿਉਂਤਾਂ ਪੁਣੀਆਂ ਕਰੀਦੀ ਨੀ ਤੇਰ ਪੂਰੀ ਬਾਬੇ ਦੀ ਐ ਮੇਰੀ ਜੱਟ ਯੁੱਤੀ ਥੱਲੇ ਰੱਖੇ ਦੁਨੀਆ ਕਰੀਦੀ ਨੀ ਤੇਰੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਫੇਰ ਜੱਟ ਯੁੱਤੀ ਥੱਲੇ ਰੱਖੇ ਦੁਨੀਆ ਕਰੀਦੀ ਨੀ ਬਾਬੇ ਦੀ ਐ ਯੁੱਤੀ ਥੱਲੇ ਰੱਖੇ ਦੁਨੀਆ सो हाँ जी गाइस सॉन्ग तो हो गया खत्म। 911 बहुत अच्छा सॉन्ग था।
बहुत पावरफुल सॉन्ग था, बहुत मोटिवेशन से भरा हुआ सॉन्ग था। करी दी नी केयर पूरी बाबे दी है मेर, जट जुत्ती थले रखे दुनिया। सो गाइस, मेरे व्यूज जाने से पहले मैं जानना चाहता हूँ मेरी मम्मी को ये सॉन्ग कैसा लगा। मुझे ये सॉन्ग बहुत अच्छा लगा, ये एनर्जी से भरा हुआ सॉन्ग भी था। और इसमें मतलब कि ना वो बड़ी अनक के साथ ये गाना गा रहे थे। उनमें ना ये गुण तो थे, सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी अनक के साथ जीना, तो मतलब कि हम्बलनेस, ये उनके मतलब के गुण थे। और अपने पापा का बहुत कहना मानते, जो जो पापा उनके अच्छी बातें सिखाते थे। वो कहते थे ना कि अगर हम कोई चीज़ पूरे जुनून के साथ करते हैं तो वो चीज़ हमें अचीव करने से कोई नहीं रोक सकता। कोई चीज़ अचीव करने को मुश्किल नहीं है, अगर खून खून में जज़्बा होना चाहिए। ये बात उनके पिताजी ने सच कही थी। तो उन्होंने कहा है मतलब कि कहा कि मतलब उनमें सेल्फ रिस्पेक्ट थी। वो कह रहे थे मैं दुश्मनों को अपनी जुत्ती के नीचे रखता हूँ। मैं ना तो किसी के आगे झुकता हूँ और ना ही मतलब कि मैं खुद पर कभी लड़ाई शुरू करता हूँ। जो दुश्मन है उन दुश्मनों को मतलब कि हमेशा अपने दुश्मनों को हमेशा अपने नीचे ही रखता हूँ। तो उनमें मतलब कि अकड़, इसको हम अकड़ तो नहीं कह सकते, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट थी, क्योंकि जो उन्होंने जो चीज़ें हासिल की थी ना, वो मतलब कि बड़ी मेहनत के साथ, जो कुछ तो होते हैं ना ऐसा ही मतलब कि अचीव कर लेती हैं, बनी बनाई चीज़ें उनको मिल जिनको जाती जिनको हैं। चांदी का चमचा कहते हैं ना हाँ, हम। चांदी का चमचा है, ये चीज़ उनको, उन्होंने तो बड़ी मेहनत से शुरू से ही बड़ी मेहनत की थी। तो कुछ लोग कहते हैं कि उनमें अकड़ थी, उनमें अकड़ नहीं थी। मतलब कि ये चीज़ें जो थी उन्होंने मेहनत से अचीव की थी। और जो कुछ लोग कहते हैं वो घमंडी थे, घमंडी भी नहीं थे। वो, ये उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट थी। और कुछ तो आ ही जाते ही अकड़, वो होनी भी चाहिए, जो चीज़ें मेहनत से मिलती हैं। तो वो कह ना तो कभी वो लड़ाई शुरू करते थे, कभी वो जो दुश्मन थे वो जलते थे, वो खुद ही उनसे पंगा लेते थे। तो मतलब कि मुझे यही उन गुण थे जो आज तक, जो मरने के बाद भी उन्हें अमर किए हुए हैं। तो ये गाना जो है मुझे अच्छा लगा, मतलब कि उनकी आवाज़ वैसे ही बड़ी सुरीली है। तो जो दुश्मन थे वो भी काफ़ी डरते थे उनसे। तो वो कह रहे हैं कि मैं तो ज़िंदगी को ऐसे जीता हूँ जैसे कि ये मेरा आखिरी दिन हो। तो पूरी मतलब कि अपनी उसके साथ, अणक के साथ उन्होंने ज़िंदगी काटी है। और जब मरे हैं वो, तो तब भी वो भागे नहीं हैं, उन्होंने मौत का भी स्वागत किया। वो आखिरी दम तक, चाहे 2 गोलियाँ ही थी उनकी उनकी रिवॉल्वर में, फिर भी उन्होंने 2 गोलियाँ तो मारी हैं। मतलब कि संघर्ष भी किया उन्होंने लास्ट में। तो मतलब कि तभी आज तक उनमें कुछ ऐसे गुण थे ना, जो मतलब कि हमें उन्हें याद करने पे मजबूर करते हैं। इसलिए मैं कहती हूँ कि उनकी जगह को कोई रिसीव करे और मतलब रिप्लेस कर ही नहीं सकता। वो एक ही थे, ऐसे सूरज चाँद है, वो एक ही थे, वो एक ही रहेंगे। बाकी सिंगर्स जो हैं उनकी जगह ले ही नहीं सकते। सेकंड, थर्ड नंबर पे तो आ सकते हैं, लेकिन जो उनकी जगह नहीं ले सकते। तो मैंने गाने का एन्जॉय किया। वैसे इसमें काफ़ी लाइन्स थी जो मुझे याद नहीं है, लेकिन जो मैंने निचोड़ निकाला है, तो उन्होंने यही कहा कि मैं पूरी अकड़ के साथ जीता हूँ, ना तो मैं कभी लड़ाई शुरू करता हूँ किसी से, मैं तो अपनी ज़िंदगी जीता हूँ। ये तो लोग हैं जो मुझसे पंगे लेते हैं, क्योंकि वो जलते हैं मुझसे, क्योंकि मैं अपनी मेहनत से जो है अपनी मेहनत से मैंने अचीव करता हूँ। और वो कुछ तो हैं जो मेरी नकल भी करते हैं, उनकी नकल भी करते हैं, जैसे आज उनके पापा ने कहा कि उनकी आवाज़ की कॉपी करते हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है। वो तो जो ओरिजिनल चीज़ होती है वो तो ओरिजिनल ही होती है। बाकी सिद्धू मूसेवाले को ना कभी भूले हैं, ना कभी भूलेंगे। उनके गाने के थ्रू हम हमेशा उनको याद करते रहेंगे और आपको भी याद दिलाते रहेंगे। तो टोटल मिला के मुझे ये गाना अच्छा लगा है, बाकी मुझ से सुनते हैं। सो हाँ जी गाइस, ऑब्वियसली ये जो सॉन्ग था 911, मतलब एक ऐसा सॉन्ग था कि ऐसा लग रहा था कि सेल्फ रिस्पेक्ट से भरा हुआ सॉन्ग था ये। सिद्धू मूसेवाला पाजी मतलब बिल्कुल बिंदास होके गाना गा रहे हैं। और वो मतलब सबसे अच्छी बात उनमें मुझे ये लगती थी कि सेल्फ रिस्पेक्ट वाले वो इंसान थे, पर्सन थे, हम्बल थे, सेल्फ रिस्पेक्ट वाले इंसान थे। एक्चुअली ना हमारे समाज में ये दिक्कत बहुत है, हम ना मतलब सामने वाले को कई बार ना वो कर देते हैं, मिस्टेकन हो जाते हैं, या मतलब गलतफ़हमी हो जाती है कि यार ये सामने वाला घमंडी है, हमें बुला नहीं रहा, है ना? ज़्यादा बात नहीं करता। भाई ऐसी बात नहीं होती, है ना? तो कई लोग होते हैं अभिमानी, सेल्फ रिस्पेक्ट से भरे हुए। उनको हो सकता है कि उनकी सोच आपकी सोच के साथ ना मिले। ऐसा तो नहीं है कि आप मतलब आपकी सोच गलत है या मेरी सोच गलत है। सोच डिफरेंट होती है, गलत नहीं होती, है ना? किसी के थॉट्स किसी के साथ मिलते हैं, हो सकता है उनके थॉट्स ना मिलते हों कई लोगों के साथ। फिर वो लोग क्या करते हैं कि भाई फिर कहना, बदनाम करना शुरू कर देते हैं, ये तो घमंडी है,
ये एटीट्यूड वाला है, ये ऐसा है। नहीं, वो कहते हैं ना जब बराबरी ना हो तो लोग बदनामी शुरू कर हाँ। देते हैं, लेकिन बदनामी तो हो सकती है, लेकिन बंदा नाकाम नाकाम नहीं नहीं हो हो सकता। सकता कभी। ये मतलब ये जो मम्मी ने अभी लाइंस बोली है ना, ये सिद्धू मूसेवाला पाजी ने एक लाइव शो किया था, उसमें वो लाइव पर अपनी परफॉर्मेंस दे रहे थे। तो उसमें उन्होंने बोला था कि अ, बदनामी करन नाल असी बदनाम जरूर हो सकते हैं, पर नाकाम नहीं हो सकते। मतलब कहने का मतलब ये कि अगर आप किसी की बदनामी कर रहे हो, ठीक है ना, किसी की चुगली करके किसी को बदनाम कर रहे हो, ठीक है, वो बदनाम तो हो जाएगा, पर वो उसकी जो अपनी जगह वो मेहनत कर रहा है, हो सकता है चलो वो ठीक है गलत भी हो इंसान, लेकिन वो जो अपनी मेहनत कर रहा है वो नाकाम थोड़ी होगा ना, वो भगवान तो उसका फल देगा ना। तो आप बदनाम कर सकते हो, लेकिन किसी को नाकाम थोड़ी कर सकते हो। नहीं, जब संघर्ष करे थे तो लोग कहते हैं ना ये क्या करेगा, ये तो बुरा है, ये क्या कर लेगा। जब वो मतलब कि ऊंचाई पे आ गया तो वही लोग उनको जो थे वो प्राउड फील करवाने लग गए, प्राउड बिल्कुल। करने लग पे उनको लग गए उन पे, है ना। वही वही बात है कि जैसे सिद्धू मूसेवाला पाजी ने खुद बताया था कि मेरे लोग मेरे फेस को लेकर बहुत टॉन्ट करते थे कि तुम्हारी शक्ल तो अच्छी नहीं है। अब देख लो, सब लोग उनका टैटू बनवाते हैं, जो उनको बुरा बोलते थे वो भी अब उनके बारे में अच्छा बोलते हैं, उनके टैटू बनवाने लग गए हैं। भाई टैलेंट की कदर होती है। अब आज जो आप हो, जरूरी थोड़ी ना आज आज से 1 या 2 या 5 साल के बाद आप सेम पर्सन रहोगे, आप में चेंजेस आएंगे। आज अगर आपकी सिचुएशन सर्कमस्टांसिस अच्छे नहीं है, हो सकता है 5 साल बाद आप स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे पहुंच जाओ, है ना। तो ये है कि आपको अपने कर्म जो है ना, अच्छे कर्म है वो जारी रखने चाहिए। अगर आपकी जो सिचुएशन है या सर्कमस्टांसिस है बुरे हैं, कि देखो जैसे सिद्धू मूसेवाला पाजी थे, उन्होंने बुरा वक्त जो देखा, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत जारी रखी, अपने अच्छे कर्म जो थे वो जारी रखे, तो वो देखो अब कहाँ पर पहुंच गए, है ना। बेशक वो इस दुनिया से चले गए, लेकिन आज आज भी उनका वो जो स्टैचर है, जो उनका जो कहते हैं ना कि अ, जो बना हुआ है मतलब उनका जो आज भी रोब बना हुआ है ना म्यूजिक इंडस्ट्री में, वो आज भी जिंदा है। नहीं, तो वो है ना, ये है ना कि वो कभी किसी से मुफ्त में कोई चीज भी नहीं लेते थे। अगर उनको कोई ऑफर दे 2 करोड़ 3 करोड़ का, लेते नहीं थे मुफ्त में। ना ही मतलब कि अपनी कमाई की जो दौलत थी वो किसी को देते थे, अपनी बिल्कुल कमाई देते भी नहीं थे मेहनत की। तभी तो दुश्मनों ने थ्रेट करना शुरू कर दिया उनको। वही बात है, आज के लेकिन टाइम में ना मतलब जो इंसान सच्चा है और जो सेल्फ रिस्पेक्ट वाला इंसान होता है ना, उसको दुनिया तंग करती करती है। लेकिन ऐसे लोग, मैं आपको बता दूं, ये ना भगवान के भेजे हुए लोग होते हैं। हम कहते हैं ना कि भगवान कहाँ पे है, तो भाई ऐसे लोग होते हैं। भगवान खुद थोड़ी आएंगे, वो ऐसे लोगों के अंश के रूप में आते हैं। वो इंसानों के रूप में आते हैं, अच्छे इंसानों के रूप में, जैसे अच्छे संत हो गए, है ना। अब हर जगह संत है, लेकिन अच्छे कहीं कहीं हैं। लेकिन वो भी भगवान का ही रूप है। भगवान खुद दूत भेजते हैं कि भाई जाओ, दुनिया को, अपने आसपास के लोगों को थोड़ा सा सुधारो, उनको अच्छा ज्ञान, अच्छी नॉलेज दो, है ना, उनके लिए अच्छा करो। कोई सिंगर के रूप में आता है, कोई संत के रूप में आता है, कोई टीचर के रूप में आता है, ये भगवान भगवान ही तो है। नहीं, भगवान खुद थोड़ी ना आएंगे। जो सिद्धू मूसेवाला जी है ना, वो पहले अलग अलग जो देश के मुद्दों पर गाने लिखते थे, लेकिन हम्म। जब मुद्दे उन्होंने उठाए तो उनके दुश्मन भी पैदा हो गए। तो पर उन मुद्दों को फिर जैसे मतलब कि उन्होंने भटकने लग गए, क्योंकि जो दुश्मन थे वो उनके तंग करने लग गए थे। इसलिए उन्होंने फिर ऐसे गाने बनाने शुरू किए कि मैं झुकता नहीं हूँ, मतलब कि मुझे तंग करते हैं ये ऐसे। तो मैं मतलब कि ना तो मैं झुकता हूँ, ना मैं किसी से कोई लड़ाई अपने आप लेता हूँ। बिल्कुल। वैसे अगर वो जिंदा होते ना, तो हमारे देश के अलग अलग मुद्दों से हमारे नौजवानों को, पंजाब के नौजवानों को परिचित करवाते। तभी कहते हैं ना, समझदार पीढ़ी होनी थी हमारे देश की, तो उन्हें पहले ही वो मार दिया। तो उन्हें मुद्दों मुद्दों से भटकाने की कोशिश की है हमारी सरकार सरकार ने, या तो उनके दुश्मनों ने। तभी फिर वो निराश होके ऐसे गाने फिर उन्होंने लिखने शुरू किए, है ना। वही है ना, एक इंसान अब कितना झेलता रहेगा, है ना। वो भी तो दुखी होते ही होंगे, कभी रात को अपने घर जाते होंगे, अपने कमरे में अपने मम्मी पापा के साथ बैठ के वो भी अपना दुख सुख शेयर करते ही होंगे कि मम्मी मैं बड़ा दुखी हूँ, लोग मुझे परेशान करते हैं। उनके पापा ने बोला भी था कि एक बार सिद्धू मूसेवाला पाजी रो पड़े थे कि मतलब हर जो भी कुछ कांड, कोई भी कांड होता है या कुछ होता है, तो उसका नाम, मतलब उसमें मेरा नाम क्यों आ जाता है। उन्होंने बताया था जब वो चले गए थे ना, उसकी उनकी बरसी पे उन्होंने वो भाषण दिया था, तो उन्होंने बोला था कि मतलब वो रो रो पड़े थे मेरे गले लग के। सिद्धू मूसेवाला पाजी अपने पापा के गले रख के रो पड़े थे, और क्या कि मतलब हर जो भी कुछ भी बुरी चीज होती है या कोई कांड होता है, उसका उसमें मेरा नाम क्यों आ जाता है। तो वही है ना कि वो अच्छे थे, अब वो भोले थे, उनके मम्मी पापा भी भोले हैं, ज्यादा उनको दुनियादारी का इतना मुझे लगता है नहीं पता, वो भोले हैं। मतलब ऐसे लोग भगवान का रूप होते हैं। और उन्होंने अपने गांव का नाम भी रोशन किया। कुछ सिंगर्स ऐसे ऐसे होते हैं ना, जो अपने गांव को
का नाम लेते शर्माते हैं। उन्होंने तो अपने गांव को मशहूर कर दिया मूसेवाला का। उन्होंने जानबूझ के ये लगाया था कि मेरे नाम के साथ मेरे गांव का नाम भी रोशन हो जाए। बिल्कुल। आज ऐसे बिल्कुल कोई हो। भी अगर हम पूछते हैं ना कि तुम कहाँ से हो, अगर वो बोलता है कि मैं मूसा गाँव। पिंड से हूँ, मूसा पिंड, तो सबसे पहले नाम पता किसका याद आता है? अच्छा, हाँ। सिद्धू मूसेवाला के पिंड से। देखो मतलब ये होता है जिसने करना होता है ना। अब हमने कदर नहीं की तो गलती हमारी है ना। हम वैसे भी मतलब इस चीज से मशहूर हैं हमारे देश के लोग कि हम अच्छी चीज की कदर करते ही नहीं है। नहीं तो उनका नाम तो शुभदीप सिद्धू था। अगर रखना चाहते तो वो इसी नाम के साथ कुछ आगे और बढ़ रख सकते लेते। थे। हाँ। उनके मम्मी पापा कह देते कि बेटा ये नाम मत रख, तू अपना कुछ और रख ले। तो अभी उन्होंने कहा सिद्धू मूसेवाला, मतलब कि सिद्धू मूसे गांव का, तो अपने गांव का नाम देखो हॉलीवुड तक भी उनका गांव का नाम शुरू हो गया। जबकि उनको रियल नेम से कम ही लोग बुलाते हैं, शुभदीप सिंह सिद्धू। ज्यादातर लोग उनको 90 to 95% लोग उनको सिद्धू मूसेवाले नाम से ही जानते हैं, है ना। तो फिर लोग सर्च करते हैं। देखो फॉरेन जो बाहर के अमेरिका के लोग हैं और जर्मनी हो गया, यूके हो गया, वहाँ के लोग कितना सुनते हैं। कनाडा के लोग जो फॉरेनर्स हैं वो भी उनके गानों पे रिएक्शन देते हैं। तो कुछ तो बात थी ना उनमें, जब उनके गाने सुनते हैं उनको एक अलग अलग चीज फील होती है बाकी सिंगर से। उनको ये लगता है कि ये कुछ अलग लिखते हैं सिद्धू मूसेवाला पाजी, इनमें कुछ खास बात है ना। कि मतलब झुकते नहीं है, सच बोल देते हैं मुंह पे, चाहे वो सरकार के खिलाफ हो चाहे और किसी के खिलाफ हो, सच बोल देते हैं। और उसमें इस गाने में मुझे पर्सनली मैं आपको बताऊं, जो लास्ट वाला पैरा था ना वो मुझे सबसे अच्छा लगा। उसमें बोलते हैं कि बापू मेरा कहंदा हुंदा गल इक नी, उंजे ही लोक ना किसे दे मितनी, होना चाहिए खून विच जज्बा, कोई चीज औखी नहीं हो इत्थे जितनी। मतलब वो कह रहे हैं कि उनके पापा कहते हैं कि उंजे जड़े लोग है ना, जो आपके दोस्त हैं, आपके पड़ोसी हैं, आपके रिश्तेदार हैं, ये किसी के नहीं है सगे। जब तक आपके पास पैसा है, शोहरत है, आपका नाम है ना, ये आपके सगे संबंधी हैं। तो वो कहते हैं कि अपने खून में ही जज्बा होना चाहिए, अपने अंदर ही पैशन होना चाहिए। इस दुनिया में कोई भी चीज़ जीतनी इम्पॉसिबल नहीं है। आप सब कुछ कर सकते हो। सिद्धू मूसेवाला पाजी ने किसका साथ लिया? अकेले ही किया, तब कहाँ पर पहुँच गए वो। तो यही बात है कि कोई दोस्त दोस्त कुछ नहीं होता, ठीक है, अपने माँ बाप ही होते हैं दोस्त। ये मैं मतलब ठीक है, कईयों को कहने पे ये चीज़ें समझ नहीं आती, लेकिन वक्त समझा देता है। जब वक्त समझाता है ना तो फिर इंसान मतलब कुछ नहीं कर सकता। तो जो वक्त समझाएगा फिर तो समझ में आ ही जाएगी। फिर उस टाइम कभी कुछ लोगों को जल्दी समझ आ जाती है तो अच्छी बात है, कुछ को देर से समझ आती है, फिर भाई उसका इलाज कोई नहीं है। चार चीजें देखो है ना, कितने माँ का प्यार, पिताजी का हौसला, बच्चे की मेहनत और भगवान की मेहर, चार चीजें हो जाए तो कोई आगे बढ़ने से रोक नहीं सकते अगर चार चीजें हो तो। बिल्कुल। तो इस चीज़ को अच्छे से समझ लो। कई कई बार ये ऐसी चीज़ें हर्ट करती हैं कि अच्छा मेरा दोस्त, भाई हर्ट, अपने आप को ना इमोशनली मेंटली स्ट्रांग बनाओ। इस चीज़ को एक्सेप्ट करो और अपने आप को ऐसा बोलो कि मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। सिद्धू मूसेवाला पाजी की तरह बनो। आप अकेले बहुत कुछ कर सकते हो, बस अपने अंदर का जो टैलेंट है उसको सर्च करो, खोजो। कभी फ्री टाइम में बैठो तो देखो कि आप किस चीज़ में अच्छे हो। आपको कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी तारीफ आपके दोस्त करते हैं, जिसकी तारीफ आपके पेरेंट्स करते हैं, जिसकी तारीफ आपके टीचर्स करते हैं, उस चीज़ में आप आगे बढ़ो। देखो फ्री टाइम में अपने आप को सोचो कि मैं ऐसा क्या करता हूँ जिसकी तारीफ सारे करते हैं, तो उसमें आप आगे बढ़ो, सब कुछ होगा। भगवान जब आपके अंदर शिद्दत होगी ना तो रास्ते बनते जाते हैं। तो बस यही चीज़ है। गाना बहुत अच्छा था। और सिद्धू मूसेवाला पाजी के बारे में क्या कहना, जितना बोले कम है। हर सॉन्ग में उनके बारे में बोलते हैं तो वो कम ही पड़ जाता है। बस इंसाफ मिल जाए, इंसाफ मिल जाएगा। एक लास्ट रिक्वेस्ट है कि बस ना दुआ किया करें उनके मम्मी पापा के लिए, कि क्योंकि ना बस उनका आखिरी जो सपोर्ट है ना वो हम जैसे लोग बचे हैं। जब तक हम जाते हैं, और ना एक रिक्वेस्ट और है कि उनके घर में जाते हो ना तो उनके माँ बाप का दुख हल्का करने जाया करो। जो भी लोग जाते हैं ना उनके घर में, तो वो अपनी वीडियोस बनाने लग जाते हैं। वो जो थार की गाड़ी है ना, जिसपे गोलियां लगी थी, उसमें व्यूज लेने के लिए अपनी वीडियो बनाएंगे। नहीं अगर वो बच भी सकते थे उस टाइम ही जो वीडियो बनाने लगे हुए हाँ, थे जब ना, ये वो लोग। उनके साथ ये हादसा हुआ तब भी लोग लगे वीडियो बनाने। क्या बेशर्मी वाली बात है। सच में कलयुग ही आ गया। कहते हैं कि कलयुग 4,32,000 साल का है। अभी तो 50-100 ईयर्स अप्रोक्सीमेटली पास हो चुके हैं, जा चुके हैं, पर अभी से ये इतना बुरा हाल है तो आगे क्या ही होगा। वो बच भी सकते थे, लोगों बस वीडियो सब बनाने कुछ हो लगे सकता था। हैं। एम्बुलेंस को कॉल करते हैं फटाफट, है ना, वहां पे बाहर खड़े वीडियोस बनाने लगे हुए हैं। बस अपनी वो बस भाई मरा हुआ इंसान है उसके साथ सेल्फियां ले रहे हैं। शर्म वाली बात है यार। जिंदा होते उनको बचा लेते तो 36 बार सेल्फियां लेते, वो कभी मना करते हैं? नहीं अभी नहीं हटेंगे उनके घर जाके, वही वही लोग अब उनके घर जाके उनके घर जाओ, वीडियोस भी बनाओ, सेल्फीज भी लो, लेकिन उनके माँ बाप का दुख हल्का करने जाओ। आपका मेन
जो मकसद होना चाहिए उनके घर जाने का, उनके पापा के साथ बैठो, उनकी मम्मी के साथ बैठो, उनका दुख हल्का करो कि कोई बात नहीं, हम आपके साथ हैं। वीडियोस भी बना लो, हम भी कभी मतलब ठीक है, वो एक होता है कि भाई इतने बड़े सिंगर के घर पे आए हैं तो सबको शौक होता है कि उनके घर की फोटो ले लें, गाड़ियों की, लेकिन पहला मोटिव आपका होना चाहिए उनके मम्मी पापा का दुख हल्का करना और उनके साथ खड़े रहना कि भाई हम आपके साथ हैं, आपके बेटे के साथ हैं और आपके साथ हैं। गाइज आपसे भी रिक्वेस्ट है कि जितने लोग जो दूर रहते हैं ना, जो उनसे सच में प्यार करते हैं, सच्चे फैंस हैं, वो भगवान से दुआ किया करें कि हाँ। उनके मम्मी पापा की सेहत ठीक रहे, और उनकी सेहत तभी ठीक रह पाएगी जब उनके बेटे को जस्टिस आप मिलेगा। उनके मम्मी डैडी के साथ जुड़े, जुड़े। ज्यादा लोग जुड़ेंगे तो शायद इतनी भारी संख्या को देखकर हमारी सरकार भी मजबूर हो जाएगी। यूनिटी के आगे सब फेल है। जैसे किसान का आंदोलन हुआ था, देखो हम जैसे आम लोगों ने हरा दिया, यूनिटी हो गई थी ना उस टाइम। तो यही है, तो ऐसा इस बार भी करके दिखाओ, उनके पापा के साथ, मम्मी पापा के साथ रहो और जस्टिस दिलवाओ उनको जल्दी से जल्दी। बस यही रिक्वेस्ट है गाइस। सॉन्ग बहुत प्यारा था, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको भी सॉन्ग अच्छा लगा होगा। और गाइस नेक्स्ट टाइम फिर किसी नई वीडियो पे रिएक्शन देंगे। टिल देन आप भी अपना ध्यान रखें, खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। बाय बाय।